مرکزي ملزم سہولتکار هم نیولې دي او دوی وی چې دغه دوه ملزمان کوم چې په ملک کې دي یا پټ دي هغوی هم ګرفتارو. نو اوس تاسو د پولیس کارکردګۍ حوالې سره څه وایي؟ مطمئن یې د پولیس کارکردګۍ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو کوم ټیک ده؟ زما نوم دی سالم احمد دی. زه د سجاد کاشف شبیر مامیم او د هغوی بل وروسته کور کې نارینه نشته چې د هغوی د کور انتظام وشي. انتظام ته زه ناست یم، د هغوی مشر یم. بسم الله الرحمن الرحیم. چې زه د څو ورځو راسې د یوه سپین نه راواله تر آی جي پورې زه مطمئن یم. دوی چې کوم خدمت زمونږ کړی دی یا دوی چې کوم پیشرفت کړی یا دوی چې موږ په کوم طریقه راغلي دي، موږ چې کومه طریقه باندې دوی موږ سره میلاویږي، نو بسم الله الرحمن الرحیم چې زما زړه غواړي چې د دوی په دې خپو د پرېوځم. دونه ما باندې د دوی د خدمت دونه اثر کړی چې هغه مړي څه کې چې زه د دوی دونه تابعدار یم چې دوی سره زه په دې دفتر کې یو کلرک پوسټ باندې زه ډیوټي وکړم. دونه زه دوی نه مطمئن یم. او بسم الله الرحمن الرحیم डी पी ओ एस पी خاص کر डी आई जी صاحب چې دې زما دونه احترام کوي او زموږ سره دونه همدردي کوي، دې زموږ کور ته راغلي زموږ ماشومانو سره زما خور سره دوی چې کومه همدردي ښکاره کړې ده، خاص کر دوی د डी पी او صاحب ایس پی صاحب. نو که زه لاک د دوی شکریا ادا کړم نو دا ډېره کمه ده. او باقي د خلکو خبرې دي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. زموږ رابطه دې مشرانو سره ده. دوی زموږ خاص کر د قوم کې بیا زموږ ډېر خدمتګار چې موږ ته کومه صدمه راسي، دوی موږ ته کوم انداز باندې پیشرفت کوي یا زموږ تبه تسلي کوي، نو زه یم چې دا به خپل زوی سره هم څوک ونه کړي. د دوی د کارکردګۍ نه زه بالکل مطمئن یم. او انشاءالله چې دوی به دا زموږ مخالفین سزای موت ته رسوي. او دوی موږ ته دا هم وعده کړې چې موږ ستاسو د هر قسمه خدمت ته موږ ستاسو تیار، موږ به تاسو نه وروسته کېږو نه. بل چیز زموږ د جړا پاریا څوک دي، پولیس افسران زموږ د جړا څوک دي، زموږ موجوده حکومت پېښولې زموږ د خبر رسولو څوک دي، تاسو خدمتګار چې دا دې ولاړې. زه د ټولې کابینې نه، تاسو نه، پولیس افسرانو نه زه ډېر زیات خوشحال یم چې دوی موږ ته کومه همدردي کړې ده او یا کوي. یعنې د بار ملکونو کې خلک خبر شوي یقین وخت چې هغوی دا کم امداد کوي او دا کم راتله موږ سره په ایمان بسم الله الرحمن. داسې خلک راځي چې موږ یې پېژنو نه. د پېښور نه راغلي دي، سعودي نه راغلي دي، د کاټلنګ نه راغلي، د ډېر ځایونه داسې کسان په ایماندارۍ که پېژنم نه. او دې مشرانو خو زما دونه تعلق شوی دی چې دا کیس انجام ته ورسي، نو زه به بغیر اجازت دې دفترو ته زه راځم، بغیر اجازت به دوی نه به زه مخکې چټلم، دوی سره به زه کښېنم. پښتو کې ټیک ټول سیټ جی پښتو ټول سیټ بالکل ریډي. ګلا په دا راته چې ستا نوم څه دی او نادر چې کوم دا عمردو دا خان دی، تا دې د کوم دی نو چې फोकस तीनों पे है. नादिर ये है कि उसी का हुजरा था, वही प्राइम एक्यूज्ड है, लेकिन साथ जो तीनों मुल्ज़मान हैं, नादिर है, नासिर जमाल है और पीर मोहम्मद है, तीनों के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, हमारी टीमें हैं, कहाँ पे हैं, एक्टिव हैं और लगी हुई, और इंशाल्लाह आपको जल्दी ये अच्छी खबर देंगे. अच्छा सर, इसमें पीर मोहम्मद जो एक नामजद बंदा है, उसके हवाले से पुलिस की तरफ से एक मौक़िफ़ जारी किया गया था कि उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, क्या ये इसमें हकीकत है? मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हमने शामिल तफ्तीश किए हुए हैं और साथ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है. आपका पहले सवाल था जो कुछ टाइम पहले आपने किया था कि जी जिससे से भी रब्ता है तमाम मुल्ज़िम होंगे. नहीं, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन जिसने ज़्यादती की होगी उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे. सर, वो जो भी गुनाह साबित हुई इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको रिलीज कर दीजिए. सर, इससे पहले मक़तूलीन की औरसा ने मुतालबा किया था आपसे कि इसमें 780A का दफ़ा जो है शामिल किया जाए, तो उस पर आपने इनकार किया था. अभी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहली बात यह कि मैंने इनकार नहीं किया. जब मैं इनके घर उमरज़ई में गया था वहाँ भी ये बात हुई थी, वहाँ मैंने इनको इनकार नहीं किया था. मैंने कहा इस पर हम मशवरा करेंगे, हम कानूनी मशवरा करेंगे कि जी इस पे उसको लगाया जाएगा. हमारा जो मकसद है, इनका जो मकसद है वो एक ही है, और वो मकसद ये है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना. उसके लिए जो चीज़ भी हम करें हम वो ज़रूर करेंगे. इस सिलसिले में मेरी इनसे फिर मशावरत हुई थी आज, ये जो साहिबान बैठे हुए हैं, और फिर हमने ये समझा कि वैसे कत्ल के केसेस में 780A नहीं लगता है, लेकिन ये जो केस है इसमें उसका इतलाक़ किया जा सकता है. चाहे किसी सहाफ़ी का रब्ता हो, चाहे किसी पुलिस ऑफिसर का रब्ता हो, चाहे कोई आम शहरी हो, क्या वो भी शामिल तफ्तीश होगा? क्या वो भी इसी तरीके से
मुजरिम साबित होगा? देखें, शामिल तफ्तीश तो लाजमन होगा, वो तो फिर तफ्तीश की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या आया, वो मुल्ज़म बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता। इस हवाले से मेरी ये इन मशरान के साथ भी तफसीली बात हुई है, मीटिंग हुई है। सर, जो एक वो भी एक मलेशिया वो भी भाग एक गया है, सहूलतकार है। दीगर दो मुल्ज़िमान हैं या जो सहूलतकार होगा उसको अपने स्पेयर करेंगे। एक सहूलतकार मेन सहूलतकार आज हमें मिल गया, और इसके साथ तफ्तीश में और जो सहूलतकार भी सामने आते रहेंगे, जो सहूलतकार होगा, जिसने मुजरिम की या मुल्ज़िम की एहानत की होगी, जिसने उसको कमीशन ऑफ क्राइम, इस क्राइम से पहले या इसके बाद किसी भी हवाले से सहूलत दी होगी, फैसिलिटेट किया होगा, तो वो फॉर्मली इस केस में अरेस्ट होगा, चार्ज होगा, चाहे वो कोई भी हो। कमज़ोर है, किस मतलब मुलजिम को पकड़ के जल्दी उनकी जमानत हो सकती है? इंतहाई गलत तासुर है। एफ़आईआर बिल्कुल ठीक हुई है। एफ़आईआर कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट की हैं, जो कि मकतूलीन की वालिदा साहिबा हैं, उनकी कंप्लेंट पर ये दर्ज की गई है, और कोई कमज़ोर नहीं है, और इंशाल्लाह ये केस जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा, और अल्लाह करब करे मुल्ज़मान को इससे सज़ा होगी अदालत से। देखें, सबसे बड़ा तो ये कि वालिदा साहिबा का ख़ुद वो है ना, वही उसकी कंप्लेनेंट भी हैं और एनी शाहिद भी हैं इस वाक़े की। एफआईआर में ये दर्ज है कि एनी शाहिद? जनाब बिल्कुल दर्ज है। आप साहब में एफ़आईआर शेयर कर सकते हैं उसकी सर, कॉपी, मेरा नाम अगर आपके पास नहीं हो। पोस्ट अखबार से हूँ। सर, आप हम जैसे हम बताया कि हम जो सूबाई महकमों से भी राब्ते में हैं, हम फॉरेन ऑफिस से भी राब्ते में, हम वज़ारत दाखिला एफ़आई के साथ राब्ते में, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जो इसकी रेड नोटिस की, और वो सारे भी हम बहुत तेज़ पेस पर पूरी कर रहे हैं, और वो जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा जी। इसके अलावा सिर्फ वो नहीं है, नादर से उनकी शनाख्ती कार्डों की को ब्लॉक करवाया जा रहा है, उनके एसेट्स फ्रीज़ हो रहे हैं, उसके लिए स्टेट बैंक को लिखा जा चुका है, डीसी साहब के साथ वो किया जा चुका है, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गया, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर, ये कब तक मुतवक्किल? जो लोग समझ रहे हैं, चाहे सद्दा के और दूसरे अजला के लोग समझ रहे हैं कि जो मैन मुलजिम है नादर खान, उसका और हमारे आईजी का आपस में कुछ करीबी रिश्ता है, हो लीजिए। इस सवाल की खैर बहुत कोई करीबी रिश्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, और मैं वो बात दोहरा रहा हूँ कि आईजी साहब की इसमें पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि मुल्ज़िम को अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्द, और एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की जाए। और एक और बात जी, इसमें मैं ये मिसपरसेप्शन मैंने पहले जिक्र किया, वो दूर करना चाहता हूँ। डे 1 से इस केस पर जितनी मेहनत हो रही है, ये दोनों अफसरान यहाँ पे बैठे हैं, DPO चारसदा और SP इन्वेस्टिगेशन चारसदा, आप देख लीजिए जितनी एफर्ट ये पिछले 5-6 दिनों में इस केस पर हुई है। मजबूरी हमारी एक ये होती है कि हम आपके साथ तफ्तीश की ब्रॉडली तो आपके साथ हम हमारे सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम वो मुनासिब मौके पे वो कर लेते हैं, तो इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है। और पहले दिन